Good evening, students. Very good evening. I hope that my voice is audible to you all, बच्चे. Just let me know. आवाज आ रही है so that I can start with the class. जल्दी से मुझे बस एक बार बता दीजिए. Okay. So basically, students, we have already covered. Okay. Let me just tell you what this entire video will all about. Just give me 1 more minute, students. Okay. Not even properly 1 minute, just the 30-second hardly. Okay. So that I can also like go to this particular page on my phone. Sure. ओके वेरी गुड इवनिंग ऑल वेरी गुड इवनिंग. चलो आज तो बारिश हो रखी है हाल फिलहाल में. ओके सो बेसिकली स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. ओके whosoever students are new here, okay, or and the students who have already taught by us, okay, students, I have already teach you the world geography, right? मैंने already आपको पढ़ा दिया. In this particular class we gonna do go for the revision series. Okay, we will go for the revision. So I will ask you certain question and you have to answer me. Okay, is this clear or not? ठीक है बच्चे, मैं आपसे केवल सवाल पूछूंगी और आप मुझे आंसर देंगे सवालों के. चलिए, my question number 1. Okay, now the question number 1 means बच्चे study of universe. What is the study of universe is called? Study of universe को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दे मुझे. Study of universe is known as. जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएं so that we can move further. The study of universe. Okay, very nice, very nice. Absolutely. Chale, very impressive students. The study of universe is known as your cosmology. Okay, cosmology, very impressive. Question number 2. बिग बैंग थ्योरी टॉक्स अबाउट. बच्चे बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बात करती है आपके? बिग बैंग थ्योरी टॉक्स अबाउट किसके बारे में बात करती है आपके? बिग बैंग थ्योरी. वेरी नाइस, impressive students. Whosoever has answered cosmology is absolutely a correct answer. That cosmology is known as the study of universe, right? Second question, बच्चे बिग बैंग थ्योरी टॉक्स अबाउट. बिग बैंग थ्योरी टॉक्स अबाउट व्हाट? 3 या 2 बातें आपको बता रखी है मैंने, राइट? बच्चे स्टडी ऑफ यूनिवर्स तो यूनिवर्स ही होता है. I'm waiting for at least 3 answers. Okay, I'm waiting for at least 3 answers. मैंने पढ़ाते टाइम पे आपको 3 चीजें बताई थी इसकी. Okay, चलो majority of you have already answered. Okay, चलो fine. I'm not going into personal कि एक बच्चे ने क्या क्या लिखा. बच्चे first of all the Big Bang theory talks about your, just wait. First it talks about your बच्चे the expansion of the universe. Okay, expansion of the universe. Second it talks about the origin and the formation of the galaxies. ये आपके galaxies कैसे पैदा हुई बच्चे. तीसरा it talks about the increasing distance, increasing gap between the galaxies. याद आया कुछ? It talks about the increasing gap between the galaxies as well. It talks about the increasing gap between the galaxies. Students, this is your entire Big Bang theory. इसके ऊपर में Big Bang theory कुछ भी नहीं है. अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोग को एक डायग्राम भी बना के बताया था. ये बच्चे आपकी बॉल थी, एक्सप्लोड हुई थी, राइट? कुछ याद आया थोड़ा बहुत? Initially, if the gap between the galaxies was this one, 3 galaxies are like this. In the second stage, 3 galaxies are like this, and in the third one, they are like this. So what is happening, बच्चे? The gap is increasing. Gap क्या हो रहा है? Galaxies के बीच का बढ़ रहा है. तो this is your Big Bang कि आपकी एक बॉल जो थी वो एक्सप्लोड हुई और आपका यूनिवर्स क्या कर रहा है बच्चे? एक्सपेंड कर रहा है.
कभी गलती से मत लिख देना दैट इट टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, दैट विल बी इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर इट टॉक्स अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड, आपके गैलेक्सीज का बच्चे ओरिजिन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, और तीसरा आपके गैलेक्सीज के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंसेस है, वो बढ़ता जा रहा है आपका। ओके, चलिए, वेरी नाइस। मूविंग टू द नेक्स्ट बच्चे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, व्हाट इज ल्यूमिनस एंड व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस बच्चे? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? व्हाट इज ल्यूमिनस एंड व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस? जल्दी से आंसर दे बच्चे, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, एंड देन आई विल आंसर। ओके, नाउ लेट मी आंसर बच्चे। अब आप अपना चेक कर लीजिएगा। ओके, ल्यूमिनस इज बेसिकली वो होता है दैट हैव देयर ओन लाइट एंड एनर्जी, हैव देयर ओन लाइट एंड एनर्जी बच्चे, जिनके पास अपनी खुद की रोशनी और ऊर्जा दोनों होती है, ठीक है। जिनके पास अपनी खुद की बच्चे लाइट और एनर्जी होती है, हैव देयर ओन, खुद का। जैसे आपका बल्ब है, आपका सनलाइट है, राइट, दे हैव देयर ओन लाइट। वेयर एज नॉन ल्यूमिनस आपके वो होते हैं, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, ओन लाइट एंड एनर्जी। बच्चे जब लाइट ही नहीं होगी तो एनर्जी कहां से आएगी? क्या कहते हो हम, सुबह जल्दी उठो, क्यों? सूरज रोशनी देता है, प्लस सूरज आपको एक एनर्जी देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सन इज गिविंग यू लाइट एंड देन साइमल्टेनियसली इट इज गिविंग यू द एनर्जी एज वेल, राइट। एंड नॉन ल्यूमिनस बच्चे जिनके पास नहीं होता है, जैसे कि अर्थ, अर्थ के पास कोई लाइट नहीं है, सन इज प्रोवाइडिंग द लाइट टू द अर्थ, सो सन विल बी योर ल्यूमिनस एंड अर्थ इज योर नॉन ल्यूमिनस। ओके, चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, वेरी नाइस। मैच करते जाइएगा बच्चे अपने अपने आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 4, सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम बच्चे? ओके, अब एलविस यादव वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ओके, जस्ट नॉर्मल सिस्टम। व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है आपका? व्हाट इज सोलर सिस्टम? बेसिकली यू जस्ट टेल मी व्हाट सोलर सिस्टम इंक्लूड्स, ओके, व्हाट इट इंक्लूड्स बच्चों। सोलर सिस्टम आपका क्या इंक्लूड करता है बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट सर, ओके, sir is not a common name. If sir is for a guy, then madam is for a ma'am. Okay, for the female one. Chali, apart from that, I respect basically the both the genders, but basically please call me ma'am rather than sir. Okay, moving to the next bache, that is PDF. Bache, are you the part of any batch? Just let me know, Bado. Are you the part of any batch, bache? What your solar system includes? Bado? Okay, the explanation of Big Bang theory is wrong. Please, you tell me the correct explanation. Definitely, बच्चे, अगर मेरा गलत है तो आप बताइए मुझे सही क्या है, और अगर गलत है ना तो पीछे क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, फुल स्टॉप लगाइए उसमें, मैम गलत है और सही ये रहा, आप बताइए मुझे सही वाला। बैडो, एंड प्लीज ऑल्सो टेल मी इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी बैच। ओके, बेसिकली ओके, वन स्टूडेंट हैज राइट द टोटलिटी। बच्चे टोटलिटी नहीं है, टोटलिटी इज बेसिकली फॉर योर यूनिवर्स, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। यूनिवर्स में आपकी गैलेक्सी समाई है, गैलेक्सीज में आपका सोलर सिस्टम समाया हुआ है, सोलर सिस्टम में हमारे सन और अर्थ समाई हुई है, एंड योर अदर एस्टेरॉइड्स वगैरह सारी कुछ चीजें समाई हुई है। ओके, दैट इज द टोटलिटी बच्चे। टोटलिटी इज यूज फॉर यूनिवर्स। टोटलिटी बच्चे यूनिवर्स के लिए यूज होता है। ओके, सोलर सिस्टम के लिए टोटलिटी यूज होता है, बिकॉज सोलर सिस्टम भी किसी एक का पार्ट है, दो यूनिवर्स भी किसी ना किसी का पार्ट होगा, बट व्हाट इज मोर नोन टू अस इज योर यूनिवर्स, राइट।
चलिए, तो बच्चे सोलर सिस्टम का पार्ट क्या है हमारा? सबसे पहला आपका सन है, देन हमारे प्लैनेट्स हैं, राइट? देन वी हैव योर एस्ट्रॉइड्स, देन वी हैव योर बच्चे कॉमेट, देन वी हैव योर मेटियोर्स, right? All these are the parts of your, plus certain dust particles बच्चे, few gases there, all these are the parts of your solar system. ठीक है, मैच कर लीजिए अगर आप लोगों ने ये लिखा हुआ, दैट इट योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑल ऑफ दिस आर द पार्ट ऑफ योर सन, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कमेट, मेटियोर्स. अब याद रखना, मैं इन पे सवाल पूछने वाली हूँ आप लोगों से, ठीक है? चलिए, डन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स नाउ. चेक कर लीजिएगा अपना. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. आई थिंक the next question. बच्चे प्लीज अरेंज. ओके, अरेंज ऑल थ्री ऑफ देम, प्लीज अरेंज. आप मुझे बताएंगे कौन कहां पर पाया जाता है. अरेंज द फॉलोइंग. ओके, प्लीज. बेसिकली मैच करना है आपको. फाइन. मेटियोर, मेटियोरॉइड एंड मेटियोराइट. surface of the earth, atmosphere. Basically बच्चे atmosphere of the earth again. Okay, atmosphere of the earth and the space. Please match this. Okay, so let me answer बच्चे. Only one has answered. बाकियों ने अभी आंसर नहीं किया है, तो should I? एबी बच्चे गलत है, वन का वन नहीं है. आपका तो मेरे को देखती पता चल गया, दैट इज रॉन्ग. वन का टू है. मेटियोर बच्चे जब हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है तब उसको मेटियोर कहते हैं. मेटियोरॉइड जब वो स्पेस में होता है, और मेटियोराइट जब उसने धरती पर ही अटैक कर दिया, दैट इज योर मेटियोराइट. ओके, प्लीज देख लीजिए बच्चे, अगर आपका ये मैचिंग है एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, अगर ये आपकी मैचिंग है तो मेटियोर, एटमॉस्फेयर, मेटियोराइट, स्पेस, मेटियोराइट, सरफेस ऑफ द अर्थ. Okay, done. Moving to the next question. बच्चे which layer of the atmosphere burns the meteor? Very nice बच्चे, very nice. आप एक बार चेक कर लीजिए अगर आपका ये करेक्ट है. Meteor with the atmosphere, meteoroid with the space, meteorite, surface of the earth. Please check this. Okay. चलिए, the next we have है बच्चे which layer of the atmosphere burns the meteor? आपके एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जो कि इसको बर्न करती है बच्चे, मेटियोर को बर्न करने का काम करती है? जल्दी से आंसर दे, सिंगल सिंगल क्वेश्चंस हैं. Okay, okay. I can see lots of answers. Absolutely, bachu. That's your mesosphere. Okay, mesosphere. Absolutely correct. Very impressive. Now the next question. Bache, name the planets according to their position from the sun. Means your nearest will be first, and the farthest will be your last. Okay, इस तरीके से सन से बच्चे
कौन कितनी कितनी दूरी पर है वो आपको बताने हैं प्लैनेट्स, नियरेस्ट टू योर फारदेस्ट। ओके, काफी बच्चे आज मैच देख रहे होंगे शायद से, केएल राहुल ने बना दिया आपके 100। चलिए, ओके, आई थिंक लहर टेक्स माय क्लासेस, राइट? दैट्स इम्प्रेसिव लहर। ओके, नाइस चैमडो, चैमडो तो आई नो, वेरी नाइस एबी, वेरी नाइस। ओके, न्यू, वेरी नाइस। चलो एटलीस्ट मुझे पता चल रहा है कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस लेते हैं। Tangzang, बच्चे, Pluto is not a part of it now, okay? Don't be over smart, just be smart. ठीक है? Okay, चलिए। So the correct answer is बच्चे M, Vem, Jason, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Please देख लीजिए बच्चे, चेक कर लीजिए इसको। Please check this बच्चे, M, Vem, Jason. Please check this. Okay, done? Nice. The next question बच्चे। बच्चे, which among the following is not the Jovian planet? Okay, your options are Jupiter, Mars, Saturn and Neptune. बच्चे, इनमें से आपका कौन सा जोवियन प्लैनेट नहीं है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। बच्चे, हाईलाइट व्हाट इज नॉट, कौन सा इनमें से आपका जोवियन प्लैनेट नहीं है? प्लीज आंसर मी। जुपिटर, मार्स, सैटर्न एंड नेपच्यून, अमंग देम। जल्दी से आंसर दे मुझे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट। लगता है सवाल ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर इंटरनेट खराब हो गया अरुणाचल में? ओ, आई थिंक मैच देखने लग गए होंगे, विराट कोहली ने भी 100 बना ली है ना। ओके, सो बच्चे, द करेक्ट आंसर इज योर मास। द करेक्ट आंसर इज मास। मास इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट बच्चे। याद है आप लोग को क्या बताया था मैंने? चलिए, वेट अ मिनट, आई थिंक वापस से रिवाइव करना पड़ेगा, आप लोगों को पावर देनी पड़ेगी थोड़ी सी शक्ति। आपका ब्रह्मास्त्र, लुक एट दिस बच्चे, वी हैव टू टाइप ऑफ प्लैनेट्स, वन इज योर इनर प्लैनेट्स, ठीक है, एंड द अदर वन आर योर आउटर प्लैनेट्स बच्चे। इनर प्लैनेट्स कौन से आपके? एम, वेम, एंड आउटर प्लैनेट्स आर योर जेसन। एम, वेम क्यों बच्चे? बिकॉज इफ यू सी द वेट अ मिनट, लेट मी राइट इट हियर बच्चे, इन दोनों के बीच में क्या आ जाती है आपकी? वी हैव द एस्ट्रॉइड बेल्ट, राइट? इनके बीच में क्या आती है आपकी? एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, एमवेम और जे सन के बीच में। तो बेसिकली, और यहाँ पर है आपका सन, सुंदर सा सूरज भाई साहब, राइट? तो बच्चे, सन से एस्ट्रॉइड बेल्ट तक जो आपके प्लैनेट्स होते हैं, अप टू द एस्ट्रॉइड बेल्ट, दे आर नोन एज योर inner planets, and the planets after the asteroid belt are known as your outer planets. ठीक है? Now they are also called, please write down बच्चे, keep writing, okay? Also called, इन्हें क्या कहते हैं आपका बच्चे? They are also known as your terrestrial planet, solid planet, plus earth like. They are also called the earth like because more or less बच्चे इनका साइज कैसा होता है? अर्थ के बराबर होता है, राइट? एंड दे आर कॉल्ड योर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है बच्चे आपके। एक मिनट, टेरेस्ट्रियल है ये, कैसे आपके? गैसियस है,
They are the gaseous planet. Solid, they are, एक minute. Terrestrial बच्चे, they are the gaseous planet. Okay. Solid, they are your बच्चे Jovian planet. इन्हें क्या कहते हैं? Jovian planets कहते हैं. Okay. Why? Because they are Jupiter-like. Jovian means they are Jupiter-like. They are Earth-like and they are Jupiter-like. Okay. Then what else is there? Other differences here. They have high density. These planets have high density. These planets have low density. They are close to the sun. They are more close to the sun. They are far from the sun. ठीक है बच्चे. अगेन दे आर स्मॉल इन साइज. ये कैसे होते हैं आपके? स्मॉल होते हैं साइज में. अब एक बात आप खुद कॉमन सेंस लगाओ. जो जितना पास होगा बच्चे सन के, वो उतना ही सॉलिड होगा. और सॉलिड की चीज का क्या होता है? कोई चीज आपकी सॉलिड है और कोई चीज आपकी गैसियस है. तो बच्चे जो चीज सॉलिड है वो क्या होगी आपकी? डेफिनेटली उसका साइज क्या होगा? कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, अब वहीं पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. यू हैव शुगर कैंडीज, राइट? एक मिनट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. फॉर योर एग्जाम्पल, यू हैव शुगर कैंडीज. जिसको हम बच्चे नॉर्मल में कहते हैं गुड़िया के बाल. ये रहा आपका. फॉर एग्जाम्पल, ये शुगर कैंडी आपका सॉलिड नहीं है, ठीक है? आप जस्ट इसको मानो ऑलमोस्ट बच्चे थोड़ा सा गैसियस है, हल्का हल्का सा. जब आप इसको मोड़ दोगे, तोड़ मरोड़ दोगे, तो आपकी बच्ची कितनी हो जाएगी? छोटी सी गोली बन जाएगी. यू अंडरस्टैंड? जब आप इसको और प्रेस करोगे तो बच्चे वो क्या बन जाएगी आपकी? सॉलिड बन जाएगी. अभी ये सॉलिड नहीं है. सॉलिड क्यों नहीं है ये? बिकॉज आप इसको कुछ भी कर सकते हो. सॉलिड मीन्स जब आप इसको एकदम टाइट कर दोगे, राइट? जब आपके पार्टिकल्स एकदम क्लोज हो जाएंगे. सो व्हाट इज दैट बच्चे? आपके जो ये होते हैं वो कैसे होते हैं? प्लैनेट सॉलिड होता है, जिस वजह से इनका साइज क्या होता है? साइज स्मॉल होता है. वहीं पर ही आपका इनका साइज क्या होता है बच्चे? दे आर लार्ज इन साइज. ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर प्लैनेट्स. ओके, चलिए. नाउ टेल मी बच्चे, जस्ट नेम मी द इनर प्लैनेट्स. क्वेश्चन, नेम द इनर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स के नाम क्या है बच्चे आपके? नेम द इनर प्लैनेट्स. नेम द इनर प्लैनेट्स. जल्दी से नाम बताएं इनर प्लैनेट्स के. बच्चे, एम आई नॉट एबल टू सी योर मैसेजेस? और आप लोग मैसेजेस कर नहीं रहे हैं, मेरे को समझ में ये चीज नहीं आ रही है. जस्ट वेट. एग्जैक्टली, मेरे को इसमें बच्चे दिख नहीं रहा है. आई एम नॉट एबल टू सी इन दिस. वेट, मैं एक बार फिर वापस से ओपन करती हूँ. ओके, नाउ आई कैन. तो बच्चे, दैट वाज नॉट योर मिस्टेक. बेसिकली मेरा फोन हैंग तो नहीं हुआ था, बट आई थिंक कुछ फेसबुक में ही कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे को मैसेजेस नहीं दिख रहे थे आपके. एब्सोल्युटली, वेरी नाइस बच्चे. दैट इज योर एम वेम. एब्सोल्युटली करेक्ट, एम वेम. ओके भाई, पता चल गया बच्चे, पता चल गया. ओके, चलिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सोच समझ के आंसर दीजिएगा. ओके, which planet is known as a green planet? Now these are just what a one word answers. Okay, one word answers. Green planet. Which planet is known as a green planet? Which planet is known as green planet? लहर, मेहरबानी तो मेरी अच्छी है बच्चे, बट अर्थ ब्लू प्लैनेट कहते हैं उसको. मारूंगी, रुको, तुम्हें मारूंगी मैं. अर्थ को बच्चे ब्लू प्लैनेट कहते हैं. पानी ज्यादा है हमारे पास में. रुको, मीना को भी मारूंगी. आ रही हूँ मैं, अभी टिकट बुक कर रही हूँ. वेरी नाइस बच्चे, दैट्स योर यूरेनस. ओके, यूरेनस बिकॉज ऑफ द मीथेन प्रेजेंस. क्या है बच्चे यहाँ पर आपकी? मीथेन बहुत ज्यादा है. बिकॉज ऑफ द मीथेन प्रेजेंस. मीना अगेन रॉन्ग बच्चे. इट्स नॉट वीनस, इट्स योर यूरेनस. तो जिसने भी यूरेनस लिखा एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कलर के बेसिस पर ही सवाल है बच्चे. अगला क्वेश्चन, ब्लू प्लैनेट. जल्दी बताएं मुझे, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं?
ब्लू प्लैनेट बच्चे। चलो, धरती माँ, अपनी मम्मी सबको याद आ जाती है, राइट? दैट्स योर अर्थ। व्हाई? बिकॉज वी हैव 71% वाटर एंड द रिमेनिंग 29% बच्चे योर लैंड, राइट? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। कमिंग टू द नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज नोन एज योर रेड प्लैनेट? जल्दी से बताएं, विच प्लैनेट इज नोन एज योर रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किसे कहते हैं बच्चे? ओके, एब्सोल्युटली नाइस बच्चे, दैट्स योर मार्स। मार्स को कहते हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड। बच्चे क्या है, इसके पास में बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड्स हैं आपके। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नाउ टेल मी, विच प्लैनेट इज नोन एज योर बच्चे इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं आपका? इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? विच प्लैनेट इज नोन एज योर इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार? ओके, चलो, जैक का वीनर है। ओके बच्चा, आई कैन अंडरस्टैंड टाइपिंग मिस्टेक। ओके, वीनस, वेरी नाइस। पेई गॉटर तो एकदम ही अलग चल रहा है दुनिया से। बच्चे क्या करके आए हो आज आप अपनी क्लास में? मून कहाँ से आ गया बच्चे? प्लैनेट्स कह रही हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। अब मेरे को स्पेशली पेई के लिए बुक करना पड़ेगा हाल फिलहाल में फ्लाइट, ताकि मैं 17 से पहले वहां आके उसको मार के फिर वापस जाऊं। ओके बच्चे, योर बिगेस्ट प्लैनेट, बिगेस्ट और द लार्जेस्ट प्लैनेट, बिगेस्ट और द लार्जेस्ट प्लैनेट बच्चे, बिगेस्ट और लार्जेस्ट प्लैनेट। Very nice. Impressive, बच्चे, impressive. That's your Jupiter. Now tell me the smallest planet. जल्दी जल्दी से बताते जाएं। Smallest planet. साथ साथ में ही। Smallest planet. Pay. That's why बच्चे. This is your revision class only. Okay? मैंने ये पढ़ाया हुआ आपको that why this is known as your star, because basically बच्चे आपका ये एक लौता ऐसा planet है जो सुबह और शाम में दिख जाता है, राइट? और हमें अपने अदर देन सन, ऊपर में क्या दिखता है बच्चे? अदर देन सन हमें एक और चीज दिखती है, वो क्या होते हैं? आपके स्टार्स दिखते हैं जो हमें चमकते हैं। तो बेसिकली आपका वीनस एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो सुबह और शाम के टाइम पे चमकता है। मॉर्निंग में मॉर्निंग होने से पहले और इवनिंग में इवनिंग होने के बाद चमकता है आपका। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जो स्टार बच्चे। इसको स्टार के साथ में बेसिकली कंपेयर किया गया बस केवल। ये स्टार है नहीं, स्टार से बच्चे इसका कंपैरिजन किया गया केवल। ओके, एब्सोल्युटली बच्चे, दैट्स योर मरकरी। वेरी नाइस। Next question. Okay. The planet having the largest number of your satellite बच्चे. The planet having the largest number of satellite. कोई बात नहीं पिंकी, कोई बात नहीं बच्चे। Planet having the largest number of satellites. जल्दी से आंसर दें मुझे। Which planet? बच्चे, it's not planet, sorry. It's just your planet. Okay. Which planet have the largest number of satellite? Okay, Pei, you are attending for the first time. Okay, that's my pleasure. कि आपने किया। Okay, so the correct answer is the बच्चे Saturn. Okay, the correct answer is your Saturn. Now people will say, मैम Saturn कैसे? जुपिटर पढ़ा था हमने तो, आपने तो बेइज्जती कर दी जुपिटर की। बच्चे, हम now look at here.
एवरी प्लैनेट्स हैव टू टाइप ऑफ मून, ठीक है। सैटेलाइट का मतलब क्या है बच्चे, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट मीन्स जो आपके प्लैनेट के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, घूमती है प्लैनेट के अराउंड, जिसको हम क्या कहते हैं आपका मून। और एक होती है आपके बच्चे एंथ्रोपोजेनिक, बेसिकली आपका ह्यूमन वाला जो हम भेजते हैं, वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, ओके। सो बच्चे जो आपके मून होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। पता होगा जिन्होंने बच्चों ने क्लास ली है, वन इज योर टेम्पररी मून्स एंड वन आर योर परमानेंट मून्स बच्चे। टेम्पररी मून एंड परमानेंट मून। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बच्चे, परमानेंट का मतलब आप समझते हो, जो हमेशा दिखते हैं, वो मून जो आपके हमेशा दिखते हैं उनको आप क्या बोलोगे, आपके परमानेंट मून्स। और टेम्पररी कौन से होते हैं, आज दिखे, कुछ सालों के लिए गायब हो गए, फिर वापस से आ गए, दे आर योर परमानेंट, ओके। ये आप क्या है बच्चा, आपके वो परमानेंट होते हैं। जो अभी हैं कुछ टाइम के लिए चले गए, वो आपके कैसे हैं, वो आपके टेम्पररी हैं, दे आर योर टेम्पररी। तो अंडरस्टैंड बच्चे, नाउ देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन योर टू प्लैनेट्स, ठीक है। दो कहते हैं तेरे पास ज्यादा और मेरे पास ज्यादा, ठीक है। एक है आपका जुपिटर और एक है बच्चा आपका सैटर्न, ठीक है ना। जुपिटर टोटल, अगर मैं टोटल प्लैनेट्स की बात, टोटल मून्स की बात करूं बच्चे, टोटल मून्स, तो किसके पास ज्यादा है, जुपिटर के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू सैटर्न। जुपिटर के पास बच्चे ज्यादा है एज कंपेयर टू योर सैटर्न। बट जुपिटर के पास बच्चे कौन से ज्यादा हैं, टेम्पररी ज्यादा है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। जुपिटर के पास टेम्पररी ज्यादा है, जबकि सैटर्न के पास बच्चे परमानेंट ज्यादा है। ओके, दिस इज द रीजन दैट व्हाई सैटर्न इज कंसीडर्ड, बिकॉज बच्चे परमानेंट। अब ऑब्वियस ही बात है, वो बच्चे जो मेरी क्लास में कभी कभी आएंगे उनको मैं थोड़ी अपना परमानेंट स्टूडेंट कंसीडर करूंगी, किनको मैं अपना स्टूडेंट कंसीडर करूंगी, जो मेरी क्लास में ऑलमोस्ट परमानेंट आ रहे हैं, मुझे हर रोज देखते हैं, हाँ ये बच्चे मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। द सेम वे बच्चे आपका जो सैटर्न है, it has more permanent moons as compared to Jupiter. This is the reason that why the correct answer is your Saturn, not Jupiter. Understand? But अगर total देखें बच्चे, total including your temporary moons plus your permanent moon, तो the correct answer will be your Jupiter, not Saturn. Okay, the correct answer will be your Jupiter. Okay, now moving to the next question, बच्चे. Which planet is known as Earth's twin? किस planet को बच्चे Earth's twin कहते हैं, अर्थ के जैसा। Okay, that's absolutely, but that's your Venus. Absolutely nice. That's your Venus. Now the planet have no moon. बच्चे, the planet have no moon. Which planets have no moon? कौन सा planet है जिसके पास कोई moon नहीं है? The planet which have no moon. Very nice, बच्चे. That's your Mercury. Impressive. Very good. That's your Mercury. Very nice. The next question. चलिए, ready रहिए आज बस questions के लिए, खूब सारे मिलने वाले हैं. Okay. Planet having ring around it. The planet having ring around it, बच्चे. कौन सा planet है जिसके चारों ओर ring है उसके पास में? प्लैनेट हैविंग रिंग अराउंड इट बच्चे, जिसके चारों ओर में आपके रिंग है. वेरी नाइस बच्चे. दैट्स योर सैटर्न. वेरी इंप्रेसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. प्लैनेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी. प्लैनेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लैनेट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी.
Okay, planet absolutely nice, बच्चे. That's your Earth. Very impressive. Very impressive. Nearest planet to our planet, बच्चे. Which is the nearest planet to our planet? हमारे planet के सबसे nearest planet कौन सा है? सबसे nearest planet कौन सा है हमारा? ओके, सो बेसिकली बच्चे डेफिनेटली हमारा अर्थ है. अर्थ के पास में आपका एक आता है मार्स और एक आपका आता है बच्चे वीनस. राइट, मार्स और वीनस यही दो हमारे क्लोज हो सकते हैं. मार्स और वीनस. बच्चे मार्स और वीनस में भी हमारा जो ज्यादा क्लोज है वो कौन सा है? वीनस है. अगर मार्स क्लोज होता, नालायको कॉमन सेंस लगाओ. कॉमन सेंस लगाओ. अगर आपके बच्चे मार्स क्लोज होता तो हमें वीनस क्यों दिखता सुबह और शाम में? इंटर रिलेट करो. मंगल, रुको तुम्हें बताती हूँ मैं. मंगलयान, रुको. वीनस बच्चे, वीनस इज द करेक्ट आंसर. पता नहीं आज कौन से नशे करके बैठे हो. खुद कॉमन सेंस लगाओ. वीनस है बच्चे. वीनस क्या है? एकदम आपको सुबह दिख रहा है बेचारा. इन विच ईयर बच्चे? आई थिंक अगेन मेरा स्टॉप हो गया वो. ओके, दैट्स देयर. नाइस नाइस. ओके, सजन आ रही हूँ बेटा. हंसो तुम, हंसो. रुको, आ रही हूँ मैं अभी. मंगल ग्रह कराती हूँ तुम्हारा. हंसो तुम, हंसो. बताइए बताइए, जल्दी से बताए बच्चे. ओके, नो आंसर. राइट, अभी तक कोई आंसर नहीं आया. कौन से साल में बेचारे प्लूटो को धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया था प्लैनेट की लिस्ट से? बेसिकली इज्जत के साथ निकाला था. ओके, एटलीस्ट मीना ने ट्राई किया बच्चे. ओके, चैमडो हैज आंसर्ड. व्हाट? ओके, सो द स्टूडेंट हैज आंसर्ड बच्चे 2006. वेरी नाइस मीना. बच्चे 9 को उल्टा कर दो. बस 9 को उल्टा करके 6 कर दो. ओके, इट इज योर 2006. 2006 की बात है. वेरी नाइस. ओके, नाउ बच्चे, नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. इट माइट आस्क इन योर एग्जामिनेशन. व्हाट वाज द रीजन? Basically, it was not only one reason. What were the reasons by which your Pluto was no more a planet? It was no more considered a planet. What was the reason behind that? Now you have to tell me the reasons. Okay. आप एक एक लाइन करके मत भेज देना कि मैम अपने आप इंटरप्रेट करते रहो. हमने तो लिख दिया, खत्म कहानी हमारी. बच्चे अच्छे से एक सेंसिबल आंसर लिखो ताकि एटलीस्ट आप कल को खुद को एक्सप्लेन कर सको उस आंसर को. राइट, देखा, मुझे पता था. टैंग जैंग ने लिख दिया आउट ऑफ ऑर्बिट. ऑर्बिट से ही भाग जाता है वो. ऑर्बिट के कंट्रोल में ही नहीं है. आउट ऑफ ऑर्बिट. ये इन्हीं आंसर्स की बात कर रही थी मैं. खाली ये टैंगजेंग का हाल नहीं है वो कि बेचारा टैंगजेंग तो फंस गया, सबसे पहले आंसर कर दिया बेचारे ने. बट और भी बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे ही आंसर करते हैं. ओके, नाउ नाउ टैंगजेंग हैज आंसर्ड. बच्चे मैं सारे आंसर देख रही हूँ. हाँ, डू नॉट कंसिडर कि मैं कुछ नहीं देख रही हूँ. सब पता चल रहा है मुझे. ओके, बच्चे क्या होता है ना, किसी को निकाला जाता है ना उसकी बदतमीजी की वजह से निकाला जाता है. ठीक है, किसी को उसकी बदतमीजी की वजह से निकाला जाता है. तो अब पहली बदतमीजी प्लूटो ने क्या कर दी. नाउ एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्लूटो इज द फारदेस्ट. ठीक है बच्चे, प्लूटो इज फारदेस्ट आफ्टर नेपच्यून. नेपच्यून के बाद आपको बच्चा आता है प्लूटो. देन वी हैविंग यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस एंड मरकरी. लाइक दिस. ओके, एम J7, सॉरी J7 कह रही हूँ बच्चे, जेसन एंड पी. ओके, सो व्हाट हैपन इज बच्चे, आपको किसी को भी. वेरी नाइस चैमडो, वेरी नाइस. आई लव यू चैमडो. वेरी नाइस बच्चे, वेरी इंप्रेसिव.
चलो एटलीस्ट चैमडो ने वही लिखा है जो मैंने उनको लिखवाया हुआ था। बच्चे हर एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है किसी भी प्लैनेट की कि वो अपनी ही ऑर्बिट में घूमता है। मतलब बेसिकली उसका एक फिक्स तरीका होता है सूरज के चारों ओर घूमने का। ओके, चारों ओर घूमने का। Tegem has answered because it does not satisfy the definition of a planet. Basically, the three definition of a planet. Its size was smaller than the standard size of the planets and it revolves out of its orbit. Okay, very nice, Rebecca. That is also almost correct, बच्चे. Almost correct. Okay, very nice. Okay. So now come back to here, बच्चे. What is the point is हर एक planet को उसकी बताई गई है कि भाई तुम्हें ये path follow करना है. ठीक है, यही आपको करना है. पर प्लूटो बने स्मार्ट. प्लूटो भाई साहब क्या बने? स्मार्ट. उसने कहा मुझे कोई रोक ही नहीं सकता. राइट, सो व्हाट ही डिड वाज बेसिकली आज भी कर रहा है वो उस काम को. प्लूटो बच्चे फारदेस्ट होना चाहिए. राइट, पर प्लूटो क्या करता है बेसिकली अपनी ऑर्बिट से छलांग मार के भाई साहब क्या करते हैं अपनी ऑर्बिट से होते होते नेपच्यून के ऑर्बिट में आ जाते हैं. क्या करते हैं? ये नेपच्यून के ऑर्बिट में आ गए. और क्या करते हैं बच्चे? नेपच्यून के ऑर्बिट में आने के बाद ये क्या कर देते हैं आपके नेपच्यून बेचारा लास्ट हो जाता है. नेपच्यून बिकम द लास्ट एंड इट बिकम द सेकंड लास्ट. प्लूटो बिकम द सेकंड लास्ट, जो कि सही नहीं है. राइट, एक प्लैनेट का पहला काम क्या होना चाहिए? दैट दे शुड रिवॉल्व अराउंड इन देयर ओन. दे शुड रिवॉल्व इन देयर own both mass planet. Okay. Okay, this is what I'm hearing for the first time, but for the very first time I'm hearing this both mass planet. Okay, they should revolve. They should revolve in their own orbit. अपनी खुद की बच्चे ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करे, किसी और की में एंट्री ना मारे. दूसरा बेचारे का साइज भी छोटा है. ओके, क्या है बच्चे? हर एक प्लैनेट का ना एक स्टैंडर्ड साइज होता है कि एटलीस्ट आपका प्लैनेट इतने साइज से छोटा नहीं होना चाहिए. ओके, आपका जो प्लैनेट है वो इतने साइज से छोटा नहीं होना चाहिए. बट प्लूटो बेचारा वहां पे भी मात खा गया. प्लूटो क्या हुआ बच्चे? एक स्टैंडर्ड साइज से प्लूटो का साइज क्या है? स्मॉलर है. अब प्लीज डू नॉट आस्क मी द एग्जैक्ट साइज बच्चे, बिकॉज आई एम नॉट स्टडिंग अबाउट द एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, मैं एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ रही हूँ कि सब कुछ याद करूँ. बेसिकली मुझे भी एज अ ज्योग्राफी पर्सन थोड़ा थोड़ा ही पता है. ओके, सो जो स्टैंडर्ड साइज होता है बच्चे उससे कम साइज है इसका. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो आपके प्लूटो को क्या बोला गया बच्चे? ना प्लूटो इज नोन एज योर ड्वार्फ प्लैनेट. ओके, इट इज नोन एज योर ड्वार्फ प्लैनेट. बोना बच्चे, बोना समझते हो? ड्वार्फ मीन्स बोना. लेट मी शो यू द ड्वार्फ पीपल. ओके, ड्वार्फ बच्चे क्या होते हैं? जिनकी उम्र बढ़ती है बट हाइट नहीं बढ़ती है साथ साथ में. ओके, दो आर योर ड्वार्फ पीपल. द बच्चे ये उम्र बढ़ रही है आपकी बट आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, मीन्स यू आर ड्वार्फ. ओके, ये वाले बच्चे. ओके, सो दिस इज द पॉइंट. नाउ कमिंग बैक टू हियर अगेन, दिस इज योर बच्चे फ्रॉम दैट ऑनवर्ड, फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड प्लूटो को क्या बोला गया है बच्चे? प्लूटो को बोला गया आपका ड्वार्फ प्लैनेट. तो क्वेश्चन कैन बी दिस आल्सो, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज अ ड्वार्फ प्लैनेट? सो प्लूटो इज नोन एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. 2006 में बच्चे आपके इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ओके, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बच्चे आपके क्या किया था? प्लूटो को एज अ प्लैनेट से हटा दिया गया था. ओके, सो इनिशियली वी हैड 9 प्लैनेट्स, नाउ वी हैव 8 प्लैनेट्स. ओके, 9 थे, अब हमारे पास 8 हैं प्लैनेट्स जो आपके. चलिए, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ आई शुड आस्क वन लास्ट क्वेश्चन. ओके बच्चे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. बच्चे हंसते खेलते दूध पीते हुए आंसर देंगे इसका. दैट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी. आई गिव यू द हिंट एज वेल. ओके, द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी बच्चे, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? ओके, इसमें एक चीज देखिए, टेंगजेंग बहुत जल्दी आंसर कर रहा है. वेरी नाइस टेंगजेंग. ओके एबी, वेरी नाइस. डेविड ने कोई आकाश गंगा. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. मिल्की वे नियरेस्ट टू द एंड्रोमेडा गैलेक्सी. बच्चे एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज नियरेस्ट टू आवर गैलेक्सी. अच्छा, टेमन का बेचारे का थोड़ा बहुत स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो गया, बट आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस बच्चे. ओके, इमोशंस पे ध्यान देना है बस. इमोशंस गलत नहीं होने चाहिए. एब्सोल्युटली नाइस. दैट्स अ बच्चे मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, कौन सी गैलेक्सी आपकी? मिल्की वे गैलेक्सी, ऑल्सो नोन एज बच्चे इन हिंदी इट इज नोन एज आकाश गंगा. क्या कहते हैं बच्चे इसको? हम आकाश गंगा कहते हैं. आकाश गंगा. ओके,
चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, विल मीट यू टुमारो एट द सेम टाइमिंग अगेन, ठीक है? कल मिलते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी थोड़ी बहुत, जो पढ़ाया आज आप लोगों को, क्वेश्चंस जो पूछे बेसिकली, राइट? आई होप ऑलमोस्ट बच्चे मोर और लेस क्वेश्चंस कम मैंने कवर कर लिए इसमें से। एक दो क्वेश्चन आपके जो छूट गए होंगे, आई विल टेक देम इन टुमारोज क्लास, ओके? कल अब हम आपका आगे पढ़ेंगे, कल थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाएंगे, दैट इज योर, कल हम पढ़ेंगे अपने अर्थ के बारे में। अब बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब हम करेंगे अपने अर्थ के बारे में, ओके, इन टुमारोज क्लास। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग इट, विल मीट यू टुमारो एट द सेम टाइमिंग, थैंक यू।